الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان تجوید کے اس کورس میں آج ہمارا آخری لیکچر ہے. اس امپورٹنٹ لیکچر میں ہم جانیں گے کہ رموز اوقاف کیا ہے، اور تجوید میں جیسا کہ ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، یعنی کیسے مخارج ہے، ان کے کیا صفات ہے. آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی جگہ ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے، کسی جگہ ہمیں نہیں ٹھہرنا ہوتا ہے. یہ جو اس جگہ ٹھہرنا اور کسی جگہ نہ ٹھہرنا، کس جگہ کیسے ٹھہرا جاتا ہے، ان تمام قواعد کو ہم رموز اوقاف کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے اس سیریز کے ابتدا میں جب قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی تھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ آپ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ادا کریں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ترتیل کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایسے اس کی تفسیر کی تھی کہ ترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یعنی ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو حروف کے تجوید کا علم ہو، آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے، اس کا کیا مخرج ہے، اس حرف کے کیا کیا صفات ہے، اس حرف کے کیا کیا قاعدے ہیں، اور وہ معرفت الوقوف، اور آپ کو وقوف کے بارے میں علم ہو. آپ کو یہ پتا ہو کہ قرآن مجید پڑھتے وقت کہاں آپ کی جو سانس ہے وہ ٹھہرنی چاہیے، کہاں آپ کو سیدھے چلنا ہے، اور کہاں آپ کو کیسے وقف کرنا ہے. اس چیز کا جو معرفت ہے، اس چیز کا جو علم ہے، یہ بھی ترتیل کا ہی مطلب ہے، یہ بھی اس تجوید کے امپورٹنٹ قاعدے میں ایک ضروری عمل ہے. تو آج کا لیکچر جو ہوگا اس میں ہم یہ جانیں گے کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس میں جہاں جہاں ہمیں وقوف کرنے ہیں ان کی جو نشانیاں ہیں، جن کو ہم رموز اوقاف بھی کہتے ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور ہم جانیں گے کہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں، یعنی آخری حالت میں، اس وقف کی صورت میں اس حرف کا یا اس لفظ کا کیا حکم ہے، کیسے وہ ادا کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں وقف کا مطلب کیا ہے. وقف کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں سانس لے کر ٹھہرنا. یعنی جو آپ قرآن مجید اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی قاری یا تجوید جاننے والا قرآن مجید کو قرت کے ساتھ یا آواز کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے کسی جگہ وہ ٹھہر جائے، کیونکہ آپ کو اس خوش الہانی کو ایک ہی سانس میں یا کنٹینیوس جو آپ کی سانس ہے اس میں آپ کو ایک طرح سے چلنا پڑتا ہے. جو ہی آپ کوئی ایسی نشانی دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں وقف کرنا. اور یہ وقف کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں، جیسے عربی قرآن مجید بھی ایک زبان ہے، جب یہ بات کرتے ہیں تو اس بات کا کسی جگہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے. ادروائز جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں، جو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں، وہ میسج پھر لوگوں تک نہیں پہنچتا، الٹا سیدھا معنی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کروں، میں آپ کو کہوں گا کہ پکڑو مت چھوڑو. اب یہ جو جملہ ہے پکڑو مت چھوڑو، یہ دو طرح سے کہا جاتا ہے. اگر میں آپ کے سامنے کہوں گا پکڑو مت چھوڑو، اس کا مطلب میں نے آپ کو کہا، میں نے آپ کو حکم دیا
आपको इस चीज को पकड़ना है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूंगा इस तरह, पकड़ो मत छोड़ो, अब देखें वही जुमला है मगर मैंने अब वक्फ कहाँ किया, पकड़ो मत छोड़ो। इसका मतलब है कि इसको मत पकड़िए आप, इसको आप छोड़ दीजिए। एक ही जुमला अलग अलग जगह वक्फ करने से उनकी उसके मायने में तब्दीली आ जाती है, वो मायने जो है वो मायने बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है। तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि जब भी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, इस पढ़ने के दौरान हमें कहाँ कहाँ किस जगह वक्फ करना है, और उस वक्फ का जो तरीका है वो वक्फ का तरीका क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह हमें वो वक्फ करना है, ठीक है। तो ये तो थी वक्फ की बात, यानी वक्फ किसको कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि वक्फ में जो कलमे की आखिर हर्फ जो होता है, यानी वक्फ का, यानी जब भी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, उसका जो आखिरी हर्फ होता है उसको हम कहते हैं मौकूफुन अलई। मौकूफुन अलई यानी जो लफ्ज जिस पे हम वक्फ करते हैं उसका जो आखिरी हर्फ होता है उसको हम कहते हैं मौकूफुन अलई। और उस मौकूफन अलई पर जब भी हम वक्फ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कवायद होते हैं जिनको आपको ज़हनशीन करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको वक्फ की निशानियां बताऊं, देखिए सबसे पहले निशानी ये है, अगर मौकूफन अलई से पहले साकिन हो तो उस पर सांस लेकर ठहर जाना ही वक्फ कहलाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर हमारे पास कुरान मजीद का एक लफ्ज है फला तक़हर, फला तक़हर। अब देखिए मौकूफन अलई इस लफ्ज का ये आखिर वाला रा है। आपने देखा कि आखिर में रा है और रा पे ऑलरेडी सुकून है, जज्म है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं करनी पड़ेगी, जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा कि हमें जो हमारी जो सांस है उस सांस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम किरत में पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ेंगे फला तक़हर, अब मेरी जो सांस अभी तक जल रही थी, चल रही थी कुरान पढ़ते पढ़ते, इस आयत के इख्तिताम पे जब पहुंच जाएगी तो मैं पढ़ूंगा फला तक़हर और अपनी सांस को मैं तोड़ दूंगा। तो यहां पर अगर मौकूफन अलई आखिर में पहले से ही साकिन हो तो आपको कोई भी कंडीशन मौकूफन अलई पे नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी सांस को तोड़ देना है। इसी तरह व अम्मस्साइल फला तन्हर, इस आयत को मैंने पढ़ते पढ़ते जब लास्ट में तन्हर पे पहुंचा तो मैंने क्या किया, आखिर में अपनी सांस को तोड़ दिया। तो एक कंडीशन ये हुई कि जब भी मौकूफन अलई यानी जिस पे हम वक्फ करते हैं उस लफ्ज का आखिरी हर्फ अगर पहले से ही साकिन में हो तो हमें कुछ नहीं करना, एज सच उसको रखना है। सिर्फ एक चीज करना है कि हमें अपनी सांस को तोड़ देना है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मौकूफन अलई जो है उस पे आरजी हरकत हो। जैसे यहां पर आप देखते हैं क़ालतिल अअराबु, अब असल में लफ्ज था क़ालत अल अअराबु, मगर मिलाने की सूरत में हम इसको पढ़ते हैं क़ालतिल अअराबु, ठीक है। और अगर इसमें जो आप ता देख रहे हैं अगर इस पे आप वक्फ करेंगे तो ये एक ही तरीका है कि उसको सांस यानी इसको सुकून पढ़कर रखें फिर पीछे से मिलाकर पढ़ें। जैसे आप मिसाल के तौर पर आपने यहां पर वक्फ किया क़ालत, ठीक है, फिर आपने सांस तोड़ दी। अब तरीका यह है कि आपको कैसे इसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप दूसरे सांस में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे क़ालतिल अअराबु, क़ालतिल अअराबु। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे पास कोई भी लफ्ज हो, ठीक है, अगर उस पे हमारे पास कोई हरकत हो, जैसे यहां पर क़ालत के ऊपर आपने देखा ये जो ता है उसके नीचे जेर है, आरजी जेर है, और इस पे आपने वक्फ किया, आपने पढ़ा क़ालत, आपने वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है अपने आप अपने अपने सांस को तोड़ दिया। जब आप दूसरी सांस लेंगे तो तरीका यह है कि इसको आप क़ालतिल अअराबु के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आप क़ालत
ऐसा नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद अल आराबु पढ़ेंगे, नहीं, आपको पिछले लफ्ज को इस लफ्ज के साथ मिलाना है। तो मौकूफन अलैहि पे अगर आर्जी हरकत हो तो उस पे आप वक्फ कर सकते हैं, मगर दूसरी सांस में मान लीजिए आप पढ़ते 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 थक गए, आपकी सांस रुक गई, तो आप वक्फ कर सकते हैं, अपनी सांस तोड़ सकते हैं, मगर दूसरी सांस जब आप लेंगे तो उस लफ्ज को फिर से पढ़ेंगे और उसको दूसरे लफ्ज के साथ मिलाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि मौकूफन अलैहि जो है वो गोलता हो, जैसा कि आपने देखा हसनतन, आखिर में जो ये ता है इसको हम गोलता कहते हैं, यानी ये हा की शक्ल में दो इसके नुक्ते ऊपर से हैं, तो इसको हम गोलता कहते हैं, गोलता। यानी एक तो होती है लंबी ता, जैसे यहाँ पर आपने कौलत के ऊपर ये ता आपने देखा, दूसरा होता है गोलता। याद रखना चाहिए जब भी हमारे पास मौकूफन अलैहि यानी उस लफ्ज का जिस पे हम वक्फ करते हैं उसके आखिरी उसका आखिरी हर्फ गोल ता हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो उसको हमें गोल हा बनाना होता है। जैसा आपने यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर लिखा है हसनतन, हसनतन। अब यहाँ पर आप वक्फ करना चाहते हैं तो हसनतन क्या बनेगा, हसन, हसन, गोलता जो है ये गोल हा में तब्दील हो जाएगा, हसनतन, हसन। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हम हसनतन असल में लिखा होता है, मगर अगर आपने वहां वक्फ किया तो आपको हसनतन गोलता वक्फ की हालत में गोल हा बन जाता है। और अगर पहले से ही गोलता के बजाय हा है मगर उस पर उल्टी पेश या खड़ी जबर या खड़ी जेर हो, उस वक्त भी वो हा बन जाता है मगर सुकून के साथ। जैसे वरसूलुह, वरसूलुह जो है असल में था वरसूलुहु, तो गोल हा पहले से ही गोल हा है, मगर यहाँ पर जो उल्टी पेश है उसको हम साकिन बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर रब्बिही में गोल हा के नीचे खड़ी जेर है, तो इसको हम पढ़ेंगे रब्बी। ठीक है, यानी हमें यह जानना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास गोलता है मौकूफन अलैहि, उसको हम उसके हा को साकिन लाके इन्हें गोल हा बनाएंगे। अगर दो नुक्ते हों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो उसको हमें गोल हा बनाना है, गोल ता को गोल हा बनाना है। और अगर ऑलरेडी वो गोल हा ही है मगर उसके ऊपर हमारे पास कोई भी हरकत है, जैसे उल्टी पेश आप देख रहे हैं, खड़ी जेर देख रहे हैं, तो इस सूरत में हमें ये उल्टी पेश खड़ी जेर उसको हमें साकिन बनाना है, हा जो है वो हा ही रहेगा। चौथी कंडीशन है कि मौकूफन अलैहि गोल ता के अलावा कोई और हर्फ मगर उस पर खड़ी जबर या दो जबर या जबर के साथ अलिफ हो तो आखिरी हर्फ को लंबा करके पढ़ते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है वद्दुहा, अब वद्दुहा में ये जो हा है उसके साथ खड़ी जबर है, यानी जो जबर बनी है ना खड़ी अलिफ की शक्ल में, तो यहाँ पर वक्फ करने का तरीका यह है कि ये जो मौकूफन अलैहि पे ये जो खड़ी जबर है तो इसको वद्दुहा करके ही हम वक्फ करेंगे, वद्दुहा। बस आपको अपनी सांस को तोड़ना है, मगर मौकूफन अलैहि वद्दुहा ऐसी ही कंडीशन में पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर दो जबर में जैसे लिखा है माअन, ये खुसूसी कंडीशन है दो जबर की, मगर दो जबर जब गोल ता पे ना हो, उसके अलावा किसी और हर्फ पे हो, जैसे यहाँ पर हमजा पे दो जबर है, यहाँ पे भी हमजा पे दो जबर है, तो पढ़ा कैसे जाएगा मौकूफन अलैहि, ये पढ़ा जाएगा मा आ, मा आ, यानी दो जबर जो है उसकी एक जबर जो है वो अलिफ बन जाएगी। इस तरह निदा दो जबर जो है ये एक जबर बन जाएगी, याद रखना चाहिए। इसी तरह जैसे काना इजहबा, इसी तरह मा निदा, तो ये याद रखना पड़ेगा हमें। अगर मौकूफन अलैहि गोल ता के अलावा किसी और हरफ पे मौकूफन अलैहि पे दो जबर हो या खड़ी जबर हो,
या सिंपली एक अलिफ हो, ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि मौकूफन अलैहि पे एक अलिफ लगा देते हैं और अपनी सांस को तोड़ देते हैं। जैसे वद्दुहा को वद्दुहा ही पढ़ते हैं, माअन और निदाअन को मा आ निदा आ पढ़ते हैं। अगर अगर अलिफ हो आखिर में, जैसा कि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, तो उसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, सिर्फ आपको अपनी सांस को तोड़ देना है। पांचवी कंडीशन ये है कि अगर मौकूफन अलैहि पे एक जबर हो तो उसको हम सिर्फ साकिन बनाएंगे, आखिरी हरफ यानी मौकूफन अलैहि साकिन बनेगा और अपनी सांस हम तोड़ देंगे। जैसे खलक, खलक, इसको हम क्या पढ़ेंगे? खलक, खलक, यानी काफ पे जो जबर है उस जबर को हम साकिन बनाएंगे, जैसा कि आपने यहां देखा। इसी तरह छठी कंडीशन है कि मौकूफन अलैहि पे जेर हो या दो जेर हो, जैसा कि तल्लाही और नईमिन। इन दोनों सूरतों में क्या होता है, इन दोनों सूरतों में आखिर को हम साकिन बनाते हैं, मगर इसकी दो कंडीशन है। एक को कहते हैं वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान का मतलब यह है कि आखिरी हरफ को हम साकिन बनाकर ठहरते हैं। दूसरा है वक्फ बिल रौम। वक्फ बिल रौम का मतलब यह है कि मौकूफन अलैहि की हरकत को आहिस्ता पढ़ते। मिसाल के तौर पर जैसे तल्लाह, तल्लाह, ये पहली कंडीशन हो गई जिसको हमने कहा वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल रौम का मतलब ये होता है कि जो आखिरी हरकत हमारे पास है इसको थोड़ा सा हम अदा करते हैं। जैसे नईम, नईम, थोड़ा सा, यानी मौकूफन अलैहि की हरकत को आहिस्ता पढ़ते हैं, थोड़ी सी, मतलब उसमें वो उस हरफ की, उस हरकत की कसरत को हम बाकी रखते हैं। इसको वक्फ रौम कहते हैं। वक्फ इस्कान सीधे तौर पे आखिरी हरफ को साकिन बनाते हैं। इसी तरह सातवीं कंडीशन है कि मौकूफन अलैहि पर एक पेश या दो पेश है, जैसे नस्तईनु। तो इसके भी पढ़ने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक है वक्फ बिल इस्कान, यानी आखिरी हरफ को साकिन बनाकर पढ़ते हैं। वक्फ बिल रौम, यानी मौकूफन अलैहि की आखिरी हरकत को आहिस्ता पढ़ते हैं। और वक्फ बिल इशमाम। वक्फ बिल इशमाम का मतलब यह है कि हरफ को साकिन ही पढ़ना, मगर होंठों को इस तरह गोल करना जैसा कि पेश पढ़ते वक्त हम करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नस्ताइन, होंठों को आखिर में आपको गोल करना है। वजह यह है कि आखिर में हमारे पास पेश है, हालांकि हम पेश को नहीं पढ़ेंगे मगर पेश जैसी शक्ल को हम होंठों को बना देंगे। इसको कहते हैं वक्फ बिल इशमाम, यानी वक्फ पेश जैसा, यानी आखिर जो हमारे पास होंठों की जो शेप होगी वो पेश जैसे होगी। जैसे हम पढ़ेंगे ना नस्ताइनु, नस्ताइनु, हम पढ़ेंगे नस्ताइन, आखिर में नस्ताइन। हमें हमें हम पे वक्फ करना है, मगर होंठों को थोड़ा सा हमें गोल करना है ताकि ये पेश जैसे हमारे पास लगे। तो ये तो हमारे पास वक्फ के पूरे अहकामात थे। यानी मोटा मोटी अगर इन तमाम वकूफ के कंडीशंस को आप, इन अहकामात को याद रखेंगे, अगर मैं आपको बहुत ही आहिस्ता तरीके और आसान तरीके से बता दूं तो बस दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। नंबर एक कि आखिरी हरफ को हमें साकिन बनाना है, अक्सर सूरतों में वही होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आखिर हमारे पास जो हर्फ है जिसको हम मौकूफ अलैहि कहते हैं उस पे हमें इन्हें दो जबर अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास दो जबर या खड़ी जबर होगी, या हमारे पास आखिर में अलिफ होगा तो उसको अलिफ के साथ ही पढ़ा जाएगा। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी, वो ये है कि अगर हमारे पास गोल ता होगा, जैसे हसनतन है, उसको हमें वक्फ की सूरत में गोल हा बनाना है। बस बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगी और वो आपके कंडीशन में आती रहेंगी, मगर ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक और चीज वो ये याद रखना है कि वक्फ की सूरत में हमें हुक्म क्या है। वक्फ की सूरत में हमारे पास हुक्म यह है कि आपकी जो सांस है, करत में जो आप पढ़ रहे हैं आपकी सांस जा रही है, वक्फ की सूरत में आपको अपनी सांस को तोड़ देना है
अमूमन जो हमारे पास रमूज अवकाफ के कंडीशन है वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरे सांस से उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे पास वक्त के अहकाम है। अब हम वक्त की निशानियों पे आ जाते हैं, यानी हमारे पास जो कुरान मजीद में, अगर आप कुरान मजीद मुसहफ देखेंगे तो उस पर हमारे पास निशानात है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस जगह क्या हुक्म हमारे लिए है। कुरान मजीद पढ़ते वक्त हमारे पास कौन से कंडीशंस करने हैं जब हमारे पास ये रमूज अवकाफ आते हैं। देखिए, इस सिलसिले में आपको मैं बताऊं, हमारे पास दो मुसहफ होते हैं। एक तो बार सगीर में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में चलता है। दूसरा मुसहफ जो सऊदी अरबिया में है। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने कुछ रमूज दिए हैं जिनको हम कहते हैं रमूज अवकाफ कुरान मजीद, यानी इंडेक्स ऑफ सिंबल्स डिनोटिंग पॉजेस, यानी जहां पर आपको ठहरना है कौन से सिंबल्स होते हैं। यहाँ जो कुरान मजीद हमारे पास है, यानी जो मुसहफ हमारे पास है, उसमें कुछ ही वकूफ होते हैं जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया है। मगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे पास मुसहफ होता है उसमें और भी कुछ निशानात है, उन पे भी हम बात करेंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, ये अहली लुगत है, यहाँ पर ये अहली जुबान है। जैसा हम उर्दू जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हमें पता है कहाँ ठहरना है, कहाँ लंबा ठहरना है, कहाँ हमें लंबा नहीं ठहरना, थोड़ा सा ठहर के आगे जाना है। यानी क्योंकि जब हम बात करते हैं, बात करने के दौरान जब हम जुमले बोलते हैं तो जुमलों में कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है ये काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज मतलब कहाँ से कहाँ चला जाता है, एक ही जुमले के मुख्तलिफ माने हो जाते हैं। तो अहली लुगत उनको पता है, तो कुछ ही कंडीशंस में वो उनको पता होना चाहिए कि क्या रखना है कहाँ नहीं रखना है। मगर जो हमारे पास मुसहफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में, चूंकि अरबी हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो हमारे पास उलमा ने, यानी जो उलमा तजवीद है, उन्होंने हमारे लिए आसानी बना दी। ऐसे यानी जो जिनको हम कहते हैं जाविल, यानी बहुत ही छोटे से छोटे जो हमारे पास चीज़ें याद होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी उन्होंने उस मुसहफ में रखा है। अच्छा, जो कॉमन है उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद उन पे जो हमारे मुसहफ में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं उसके क्या अहकाम है। सबसे पहले है गोल दायरा। ये गोल दायरा, इसको हम कहते हैं आयत, यानी इस अलामत को हम आयत कहते हैं। और इसका जो हुक्म है वो ये है कि यहाँ पर हमें ठहरना चाहिए। जिस तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, यानी कोई एक मुकम्मल जुमला होता है, वैसे ही अरबी में एक मुकम्मल बात करने के बाद एक गोल दायरा दिया जाता है जिसको कहते हैं आयत। जब भी आयत आप देखेंगे, गोल दायरा देखेंगे, तो उस वक्त हमें वक्फ करना है। और वक्त क्या होता है मैंने आपको बताया। अगर हम सांस से चल रहे हैं, हमारे पास एक स्पीड है, हम करत के साथ पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि अपनी सांस को हमें तोड़ देना है। और बाकी मैंने आपको बता दिया जो मौकूफन अलैह यानी आखिरी हरफ है उसके क्या अहकाम है, उसी के मुताबिक उसको हमें ठीक करना है। जैसे हमारे पास मिसाल है, कुल हुवल्लाहु अहदुन है लिखा है, अगर आप देखेंगे। मगर हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। अहद यानी एक तो मैंने दुन, दो पेश को मैंने हटा के सुकून किया, सांस को तोड़ दिया। और आपको पता है कि दाल जब साकिन होता है तो इस पे कलकला होता है। अहदुन में दाल पे कलकला नहीं होगा क्योंकि दो पेश है, मगर जो ही मैंने दाल को साकिन बनाया तो उस पे कलकला हो गया। एक और मिसाल हमारे पास है, यानी एक और वक्फ हमारे पास है, एक और निशानी हमारे पास है, वो है मीम। मीम को कहते हैं वक्फ लाजिम। वक्फ लाजिम इसकी अलामत है और इसमें भी हमें ठहरना होता है, ऑब्लिगेटरी पॉज है ये। वक्फ लाजिम इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप वक्फ लाजिम जहाँ पर मीम बना हो, छोटी मीम जिसको वक्फ लाजिम कहते हैं, अगर आप यहाँ नहीं ठहरेंगे तो माने कहीं से कहीं बन जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने इब्तिदान एक जुमला बताया, जैसे मैं आपको बताऊंगा पकड़ो मत छोड़ो। अब ये जो जुमला है इसमें अगर हम वक्फ करेंगे पकड़ो मत, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा छोड़ो। पकड़ो मत छोड़ो, इसका मतलब क्या है? मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि इस बंदे को आपको पकड़ना नहीं है, इसको छोड़ दो। मगर अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा पकड़ो मत छोड़ो, अब जुमला वही है मगर मैंने पकड़ो पे मैंने स्टॉप किया, पकड़ो मत छोड़ो, तो माने जो पहले का था वो बिल्कुल इसके अपोजिट बन गया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसको पकड़िए, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो मत। तो ये जो ये फर्क आ जाता है,
یہ اس وقت آ جاتا ہے جب آپ میم پہ وقف نہیں کریں گے. تو میم پہ وقف کرنا اوبلیگیٹری ہے, یہ کمپلسری ہے, ادروائز معنی وہی کا وہی ہو جائے گا کہ کچھ کہا جاتا ہے اور آپ پڑھتے وقت کچھ ایسا معنی بن جاتا ہے کہ جو بالکل اس کے مد مقابل یعنی اپوزٹ ہوتا ہے. تیسری جو وقف کی کنڈیشن ہے, سمبل آف وقف ہے, وہ ہے طا. طا کو کہتے ہیں وقف مطلق. وقف مطلق اس پہ ٹھہرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہمیں ٹھہرنا چاہیے, اس کا حکم بھی یہی کہ اس پہ ہمیں وقف کرنا چاہیے. چوتھی جو کنڈیشن ہے وہ ہے جیم. جیم کو کہتے ہیں وقف جائز, اس کی علامت ہے وقف جائز. یہاں پر آپ کے پاس چوائس ہے, یہ آپشنل پاز ہے کہ یہاں پر آپ ٹھہریں تو بہتر ہے اور آپ نہ ٹھہریں تو بھی جائز ہے. یعنی ٹھہرنا جیم پہ وقف جائز پہ بہتر ہے. اگر آپ نہیں ٹھہرتے ہیں, آپ کے پاس سانس ہے, اب آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے پاس وقت ٹھہرنا بہتر ہے اور آپ نہیں ٹھہریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, یہ جائز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے زا. زا کا مطلب ہوتا ہے علامت وقف مجوز یا مجوز. جو زا ہے وقف مجوز, یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے, یعنی بہتر ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. مان لیجیے اگر آپ نے سانس توڑ کے ٹھہر بھی گئے تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے, مگر ڈیزائریبل یہی ہے, بہتر یہی کہ آپ نہ ٹھہریں, اس کو آپ اگنور کر کے آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے صاد. صاد ہے علامت وقف مرخص. وقف مرخص کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کر آپ کو ملا کر پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ تھک جائے تو رخصت ہے, مطلب آپ کے بیچ میں آ گیا, آپ تھک گئے, رخصت ہے, تو اس کو آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا, مگر بہتر یہی ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں. اس کے بعد ہے صلا. آپ نے ایسے دیکھا ہوگا صلا, اس کو صلا کہتے ہیں. اصل میں یہ عربک لفظ ہے الوصل الاولا, یعنی الوصل الاولا کو ہم آرام سے صلا لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ملانا بہتر. وقف کی جو اپوزٹ ٹرم ہے وہ ہے وصل. وصل الوصل الاولا, یعنی بہتر ہے کہ وصل کرے, یہاں پر آپ نہ ٹھہرے. ٹھہر گئے تو کوئی غلط نہیں کیا آپ نے, مگر نہ ٹھہرنا بہتر. اس کے بعد ہے قاف. قاف جو ہے یہ علامت ہے قیل علیہ الوقف, ٹھیک ہے. قیل علیہ الوقف مطلب یہ ہوگا کہ اٹ از سیڈ, اٹ از سیڈ, اٹ از سیڈ کہ یہاں وقف کریں, مگر بہتر ہے کہ یہاں پر آپ نہ ٹھہریں. یعنی جب بھی آپ قاف دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں نہ ٹھہریں, یہی بہتر. اس کے بعد ہے صل. صل کا مطلب ہوتا ہے قد یوصل, اس کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. صل ٹھہرنا بہتر ہے اور صلا نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اس کے بعد ہے قف. قف عربی میں بھی یہاں پر جب آپ روڈز پہ چلتے ہیں تو وہاں پر جو ریڈ سگنل ہوتا ہے نا, اس پہ لکھا ہوتا ہے قف. قف کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ. تو یہاں پر جب بھی قف لکھا ہوگا تو آپ ٹھہریں, یہاں ٹھہرنا ضروری ہے, لازمی ہے. اس کے بعد ہے سین, یا کبھی کبھی آپ دیکھیں گے سکتہ. سین, کیف, تا اور گولہا. سین یا سکتہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ٹھہرنا ہے, مگر آپ کی جو سانس ہے وہ ٹوٹنے نہیں پڑنی چاہیے. دیکھیں آپ ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی آپ وقت کریں آپ کو سانس توڑنا ہے, مگر سکتہ میں یہ کرنا ہے کہ اب آپ ٹھہریں گے مگر آپ کی جو سانس ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے, اسی سانس میں آپ کو آگے بڑھنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی دعا ہے, ربنا کیا ہے وہ دعا آخر میں, ربنا لا ربنا تؤاخذنا, آتنا فی الدنیا ربنا لا ان تؤاخذنا, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اب دیکھیے گا واعف عنا جو ہے نا اس پہ یہی سکتا ہے, واعف عنا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو قاری پڑھتے ہیں نا وہ کیسے پڑھتے ہیں, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. یعنی وہ وقف تو کرتے ہیں مگر اس سانس کو برقرار رکھتے. کہ قرآن مجید جب آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھیں گے اس میں 3 جگہوں پہ یہ کنٹینیوس ہے, واعف عنا واغفر لنا ورحمنا. آپ دیکھیے گا قاری جو ہے وہ پڑھے گا, وقف کرے گا, مگر اسی پرانے سانس کو برقرار رکھے گا.
यानी आपको उस वक्त वो सांस तोड़नी नहीं है। ये सिर्फ इस कंडीशन में आपको याद रखना है, जिसको हम कहते हैं सीन या सक्ता। इसी तरह एक कंडीशन है जिसको कहते हैं वक्फा। सक्ता और वक्फा के जो अहकाम वो सेम है, बस ये याद रखना है कि सक्ता के वक्त जो हम ये ठहरते हैं ना, थोड़ा टाइम तक ठहरते हैं, मगर वक्फा के वक्त थोड़ा सा इसको लंबा ठहरते हैं, सांस को तोड़े बगैर। इन्हें सक्ता और वक्फा, इनके दोनों के अहकाम सेम है कि आप सांस को नहीं तोड़ेंगे मगर आप ठहरेंगे। मगर सक्ते में जो ठहरना होगा, मान लीजिए वो 1 सेकंड के बराबर होगा, वक्फा में 1.5 सेकंड या 2 सेकंड तक आपको ठहरना होगा सांस तोड़े बगैर। बस यही फर्क है सक्ता और वक्फा में, ये स्पेशल कंडीशन है। और यही सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है, आप देखेंगे कुरान मजीद में, जहां पर आपको सांस नहीं तोड़ना है। अदरवाइज बाकी जितने भी वकूफ के अलामात है वहां पर आपको सांस तोड़ना है। आखिर में हमारे पास एक अलामत आती है जिसको कहते हैं ला, लाम अलिफ ला लिखा होगा। इसका मतलब होता है फॉरवर्ड पॉज, यानी ये सिर्फ वो ऐसा वक्त है जहां पर आपको नहीं ठहरना है। अभी तक हमने देखा जहां पर आप ठहरेंगे और जहां पर आप लाजमी ठहरेंगे, जहां पर आपको रुखसत है ठहरे न ठहरे। मगर ला ऐसी कंडीशन है, लाम अलिफ ला, जिस पे याद रखना चाहिए हमेशा हमेशा हमें वक्फ नहीं करना। मान लीजिए आपकी सांस टूट गई और कंडीशन ला थी, तो आपको उस लफ्ज को दूसरी सांस में फिर से रिपीट करना होगा। ठीक है, ये तो हो गई वो कंडीशन जो हमारे पास कुरान मजीद में, जो मुसहफ हमारे पास हो। उसके अलावा हमारे पास कुछ और वकूफ है, स्पेशल वकूफ, जैसे वक्फ गुफरान है, वक्फ कुफरान है, इसी तरह वक्फ जबरील है, वक्फ नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसे कुछ स्पेशल वकूफ है जो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जब कुरान लेके आए तो उन्होंने वक्फ किया, या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास जगह पे वक्फ किया। मगर ऐसे जो वकूफ है वो बहुत ही कम है कुरान मजीद में, और जहां जहां वो वकूफ है वहां वहां जो मुसहफ में साइड में लिखा होता है कि ये क्या है। इसके अलावा हमारे पास एक और वक्त है, वो तीन तीन नुक्ते हैं। और जब आप सूरतुल बकरा पढ़ेंगे, जैसे अलिफ लाम मीम, उस पे है, उसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ला रैब और फीह, इनके आप देखिएगा ला रैब के ऊपर भी तीन नुक्ते हैं और फीह के ऊपर भी तीन नुक्ते हैं। ये तीन तीन नुक्ते, इनको हम कहते हैं मुआनिका। मुआनिका, मीम आइन अलिफ नून काफ और गोल हा। मुआनिका, मुआनिका का मतलब यह है कि दोनों कंडीशन में एक जगह आपको ठहरना है, एक जगह नहीं ठहरना। अब कहाँ ठहरे कहाँ ना ठहरे ये आपकी चॉइस है। इसीलिए हमने पढ़ा ला रैब फी, राइबा पे हमने वक्फ नहीं किया, हमने फी पे वक्फ किया। आपके पास ये भी चॉइस है, आप पढ़ेंगे ला रैब, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। यानी तीन तीन नुक्ते होते हैं। अभी आप कुरान मजीद को सूरह बकरा की पहली दूसरी आयत को देखेंगे तो आप देखेंगे कि तीन तीन नुक्ते इसमें होते हैं। इसको हम कहते हैं मुआनिका। ठीक है, इसमें एक जगह आप ठहरे, एक जगह नहीं ठहरे, आपके पास चॉइस है। अब जिस तरह हमारे पास, जैसे हम रोड्स पे जाते हैं हमारे पास लाइट्स होते हैं, वैसे ही इस स्लाइड में हमने एक कोशिश की आपको बताना कि किस जगह क्या कंडीशन है। मान लीजिए आपके पास ला आ गया, तो मैंने आपको बता दिया डोंट स्टॉप, ये ग्रीन सिग्नल है, यहां पर आपको वक्फ नहीं करना, बिल्कुल सीधे जाना है। सला और जीम, हालांकि दोनों जगह हम वक्फ कर सकते हैं, मगर आपके पास चॉइस है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, आप रुक भी सकते हैं। सला अल वस्लुल उला, ठहरना बेहतर है। जीम वक्फी जायज, ठहरना बेहतर है, मगर आपके पास चॉइस है, आप जाए तो जुर्माना नहीं होगा। एक और कंडीशन है कला। कला ये बेहतर है कि यहां पर आप ठहर जाए। और इसके बाद है मीम, और जो गोल आयत है जिसको हम कहते हैं आयत कहते हैं, मीम है मस्ट स्टॉप, यानी अगर आप रेड सिग्नल में थोड़ा सा भी आपने क्रॉस किया, सऊदी अरबिया में होंगे तो आपको 3,000 रियाल जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह मीम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एक वक्फ है, यहाँ पर कतन हमें इजाजत नहीं कि हम वसल करें। वसल मतलब हम आगे बढ़े, हमें वक्फ ही करना पड़ेगा, ये फॉरबिडन। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास जैसे मैंने 3 नुक्ते बताए थे, इस पे आपके पास चॉइस है कि एक जगह आप ठहरे, दूसरे पे आपको नहीं ठहरना। सीन भी होता है कहीं जगह, तो इधर इसको कहते हैं विदाउट टेकिंग ब्रेथ, यानी सकता मैंने अभी जो आपको बताया कि आपको ठहरना है। सीन सकता ये एक ही बात है, मगर आपको आपकी सांस टूटनी नहीं चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, मीम ये कंपलसरी है, यहाँ पर आप स्टॉप करें। तो और गोल आयत ये नेसेसरी है कि यहाँ पर आप स्टॉप करें। मुआयनिका 3 नुक्ते मैंने यहाँ पर बनाए। इसके बाद आपके पास ये हुक्म है कि एक जगह ठहरे, दूसरी जगह न ठहरे। साथ साथ में 3-3 नुक्ते होंगे। आप जब भी इस 3 नुक्ते को देखेंगे, एक जगह नहीं होगा, ये 2 जगहों पे होंगे साथ साथ में। एक जगह ठहरे, दूसरी जगह न ठहरे, आपके पास चॉइस है। इसी तरह कभी कभी ऐसे तलवार की शक्ल बनी होगी या वक्फ नबी लिखा होगा, तो ये वो मकाम है जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त किया कुरान मजीद पढ़ते वक्त। तो ये ऐसे मौका है जहां पर आपको कुरान मजीद पढ़ते वक्त वक्त करना है, आपकी सांस को तोड़ना है। इसके बाद है जीम, ये प्रेफरेबल स्टॉप है, यहाँ ठहरे तो बेहतर है, नहीं ठहरे तो गुनाह नहीं है। सीन या सकता जो वक्फा, इसमें यह करना है कि आपको अपनी सांस जो है तोड़े बगैर वक्त करना है और उसी सांस में फिर आगे बढ़ना है। और कंटिन्यूस रेसिटल, यानी कहाँ आपको कुरान मजीद में वक्त नहीं करना, वो एक तो ला है जहां ममनू है वक्त करना। इसी तरह सल है, जा, कौफ, किफ, सला, ये तमाम कंडीशन है, या तो भी इसमें तो खैर आता है वक्त में। तो ये कंडीशन सौद, सला, जा, कौफ, किफ, सला, ये तमाम ऐसे हैं कि जहां बेहतर है न ठहरे। अगर आप ठहरेंगे तो गुनाह नहीं करेंगे, मगर नहीं ठहरना ही बेहतर है। अच्छा, अब कंडीशन कभी कभी ये होती है कि हमारे पास वक्त भी है, उसके ऊपर ला भी है, तो क्या करें? तो उलमाई तजवीद हमें ये बताते हैं कि इस वक्त आपके पास चॉइस है कि आप ठहरें या न ठहरें। जैसा आपने यहाँ देखा ना, तो वक्त की सूरत में, गोल दायरे की सूरत में तो हमें वक्त करना था, मगर ला की सूरत में हमें वक्त नहीं करना। दोनों जब मिल जाए तो ये एक दूसरे की जो यानी जो उनका हुक्म है, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं। तो ला की वजह से हमें नहीं ठहरना था, आयत की वजह से हमें ठहरना था, तो दोनों मिल गए। इसमें हमारे पास चॉइस है, आप वक्त करें या आगे बढ़े। इसी तरह ला और छोटी सी 5 की शक्ल में बना होता है, तो इसका भी हुक्म ऐसा ही है। और उसके अलावा कोई और वक्त होगा जिसमें आप देखेंगे ऊपर वाला कुछ होगा, ऊपर मान लीजिए त्वा है, नीचे आइन है, या ऊपर ला है और नीचे नीचे जीम है। तो याद रखना चाहिए उन सूरतों में जहां पर हमारे पास दोनों वक्त कंडीशन होते हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप वहां वक्त करें या आप वहां वसल करें। वसल वक्त की अपोजिट है, यानी आप बिल्कुल ही सीधे चले। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर है, इसमें हमने ये जाना कि वक्त की क्या कंडीशन है, कैसे हमें वक्त करना है, और मौकूफ़न अलई, इन्हें जिस पे हम वक्त करते हैं उस हर्फ के क्या अहकाम है, और कहाँ कहाँ हमें ठहरना है, कहाँ हमें नहीं ठहरना है। इसके साथ साथ हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 14th लेक्चर हमारा था। तजवीद के 14 लेक्चर हमने कंप्लीट किए। अब इसमें यह है कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है, वो कंटिन्यूस रहेगी इंशाल्लाह पूरा कोर्स उसके बाद भी। मगर जो मोटे मोटे कवायद हमने तजवीद के जाने, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पूरे किए। तजवीद और भी काफ़ी बारीक मतलब मसाइल है उसमें से, मगर हम उनको इस सिलेबस का पार्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि मोटी मोटी चीज़ें जानना, जिससे हम कुरान मजीद को अच्छी तरह से पढ़ना जाने। तो इस पे हम आज स्टॉप करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट सीरीज होगी इंशाल्लाह हमारे आने वाले दिन पे, जहाँ पर हमारा लेक्चर होता है इन्हें ट्यूसडे में, उससे हमारे पास अब ग्रामर के जो क्लासेस है उनका आगाज होगा। और चूंकि अब नमाज भी काफ़ी आगे आ गई, तो सऊदी अरबी के टाइम के हिसाब से 6:30 बजे, यानी जो इंडिया का टाइम आता है 9 बजे, उस टाइम पे आप अपने वक्त पे बरकरार रहें इंशाल्लाह। अब हमारे जो ग्रामर के क्लासेस हैं, आसान ग्रामर के क्लासेस, जिसमें हम कुरान मजीद के ट्रांसलेशन करना और कैसे कुरान मजीद में कौन से लफ्ज़ और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका क्या मतलब आ जाता है, पूरा सीखेंगे। सर्फ भी और नहव भी इंशाल्लाह ये बराबर चलेगा हमारा। जो हमारा इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले तक इंशाल्लाह वो पूरा होगा। मगर आज इस लेक्चर के साथ साथ हमारे जो तजवीद के जो पूरे कोर्सेज है वो पूरे हो गए। इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया है, और इसका मैंने एक
प्ले सिस्टम भी बना दिया है कि पूरे 14 के 14 लेक्चर्स उसमें आ गए। तो ये पूरा सीरीज में आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उसको अपने साथ आप रखें, उसको रिपीट करें, अपने नोट्स बनाएं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बरकरार है। अगर कोई सवाल है, किसी जगह आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 4 मिनट है, अगर कोई साथी कोई पूछना चाहे, कोई भी कोई इशू हो, अभी तक कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आए या कुछ और आपको मशवरे देने हो, तो 4 मिनट में आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर इंशाल्लाह एंड होगा। किसी साथी को अगर कोई सवाल है, या अगर लिखें भी आप अपने जो चैट बॉक्स में, उसमें आप लिखें। बाकी हमारा जो तजवीद के जो कोर्सेज थे, तजवीद का जो कोर्स था, लेक्चर्स था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हो गए। तो मुझे लग रहा किसी साथी को कोई सवाल है नहीं, तो इससे हम फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस कोशिश को, काविश को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।